students, and welcome to your English language class. Today, we'll be reading the second part of the chapter, The Sound of Music. Now, this chapter, which we are going to read today, is about the life story of the greatest Shehnai maestro, Ustad Bismillah Khan. And the title of this chapter is The Shehnai of Bismillah Khan. We'll also come to know how this beautiful and magical musical instrument called Shehnai was initially crafted by one of the royal barbers, or as we call in Hindi, Nai. So, Shehnai was first ever played in the Shah's chambers by a Nai or a barber, so it was named as Shehnai. Okay, so let us start reading the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. नाउ एम्परर औरंगज़ेब ने जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था पहले पुंगी, उसको बैन कर दिया था क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही अनप्लेजेंट थी और अच्छी नहीं लगती थी सुनने में. इट वाज वेरी श्रिल, इट वाज वेरी शार्प. सो पुंगी जो था वो एक जेनरिक नेम, एक जैसे एक कॉमन नेम हो जाता है ना, क्लास को, एक पूरी होल लॉट को आप एक नाम दे देते हो. तो जो रीडेड नॉइस मेकर मीन्स जो आपके जितने जैसे जो पाइप्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पाइप्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपके फ्लूट है और आपकी जो ये पुंगी जैसे होती थी देखने में, ठीक है. तो इनका जो आवाज़ थी वो जो इस पुंगी की आवाज़ थी वो अच्छी नहीं लगती थी कानों में, इसलिए वो एक पूरी क्लास को नाम दे दिया गया था. जितने भी ये रीडेड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे या पाइप्ड, जो आपके हॉलो सिलेंड्रिकल स्टेम्स होती हैं ना, जिनसे कि विंड ब्लो करके आवाज़ निकाली जाती है, उनको हम रीड्स कहते हैं या रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. और लोग भूल ही चुके थे कि ये कभी रिवाइव भी होगी, दोबारा कभी इट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. ऑल दीज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, द पाइप्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे उनकी फैमिली में एक बार्बर थे, उन्होंने सोचा कि ये जो पुंगी है मैं इसकी टोनल क्वालिटी को बढ़ाता हूँ, मैं इसकी जो सेटिंग है उसको थोड़ा सा मैं अगर ठीक कर दूँ तो शायद इसमें से अच्छी आवाज़ निकले. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. तो जब उन्होंने उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किए तो उसमें से जो आवाज़ आई वो बहुत ही अच्छी थी. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. Royalty means all the family members of the king and all the noblemen. So, when he played the instrument before them, everyone was impressed. As you can see the pictures here, the pungi and the shehnai, there's a major difference in the shape and obviously the sound that it produces. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. Obviously, अब इतना ज़्यादा जब different एक new musical instrument बन गया था तो एक new name भी उसको देना था. Now, as the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was placed by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. शाह के चैम्बर में उसको पहली बार प्ले किया गया था और एक नाई ने उसको पहली बार बजाया था, तो इसलिए उसका नाम शहनाई पड़ गया. That's a story. Okay. The sound of the shehnai began to be considered auspicious. और इसकी आवाज़ जो थी बहुत ही एकदम ऑस्पिशियस, जैसे कि आप कोई पूजा पाठ में या कोई भी ट्रेडिशनल कोई सेरेमोनियल चीज़ें जो होती थी उनमें शहनाई को बजाना शुरू कर दिया गया. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और अभी भी, वैसे तो ये बहुत ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आज भी अगर आप शादियों में देखें तो शहनाई ज़रूर बजती है क्योंकि उसकी जो साउंड है दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी वेरी ऑस्पिशियस. नाउ in the past, the shehnai was part of the naubat or traditional ensemble of
9 instruments found at royal courts. शहनाई जो है वो हमेशा जो रॉयल कोर्ट्स में 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे, फेमस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें से हमेशा एक होती थी. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. Now, पहले सिर्फ इसको ऑस्पिशियस उसमें यूज़ किया जाता था ताकि इससे एक जो आवाज़ आती है उससे हम भगवान को रिलेट कर सकें, एक अच्छे फॉर्च्यून को, एक अच्छे भविष्य को, एक अच्छी किस्मत हम इससे वो कर सकें. और शादियों में बजाया जाता था क्योंकि वो भी एक ऑस्पिशियस सेरेमनी मानी जाती है. तो लेकिन इसको जो इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, इसको क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. और जब बिस्मिल्लाह खान छोटे से थे, 5 साल के, वो गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के किनारे बिहार में एक गांव में, दुमराव. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chet, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. और जब बिस्मिल्लाह खान एक वहाँ पे टेम्पल था और वहाँ पे जाके अपनी भोजपुरी जो भजन होते हैं वो जब वो करते थे, गाते थे, तो उनको एक 1.25 kg का लड्डू मिलता था इनाम में, वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उनसे. This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और ये कब की बात है? आज से मतलब 80 ईयर्स पहले की ये बात है. और लेकिन अब जो है उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल गया था. ये जो छोटा सा लड़का था, इसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था इंडिया का. वो कौन सा होता है? भारत रत्न. नाउ बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. His grandfather Rasool Bux Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. अब ये जो इनकी पूरी फैमिली है वो म्यूजिशियंस की फैमिली थी. और इनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, ही ऑल्सो यूज टू प्ले शहनाई एट द भोजपुर किंग्स कोर्ट. His father, Paigambar Bucks, and other paternal ancestors were also great Shehnai players. इनके फादर और बाकी के भी जितने पैटर्नल इनके एंसेस्टर्स थे वो भी शहनाई प्लेयर्स थे. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. अब इनकी जो पैटर्नल साइड थी और जो मैटर्नल साइड थी, दोनों ही म्यूजिशियंस की फैमिली थी. ओके. और जब इसकी जो मम्मा है वो इसको अपने भाई के घर लेकर जाती थी, मतलब जब ये अपने मामा जी के घर जाते थे बनारस में, वहाँ भी वो देखते थे कि इसके जितने मैटर्नल अंकल्स हैं या मामा जी हैं वो लोग भी शहनाई बजाते हैं. तो ही यूज टू गेट वेरी मच charmed or very much fascinated with the sound of Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple of Banaras, where Bucks was employed to play the Shehnai. और इसके जो मामा जी थे वो विष्णु टेम्पल बनारस में ही वॉज एम्प्लॉयड, वहाँ पे काम करते थे और शहनाई बजाने का काम था उनका. अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. और अली बख्श जब प्ले करते थे शहनाई को, बिस्मिल्लाह एकदम जैसे हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं वैसे घंटों बैठ के उनको सुना करते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और धीरे धीरे जब उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो ही स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट. और बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करते थे पूरे दिन में. फॉर years to come, the temple of Balaji and Mangal Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts. There he could practice in solitude. Apprentice means a young beginner or a young learner or a trainee. Okay. Or haunts mean the place where you visit often. तो ये कहाँ, ये इनका जो फेवरेट स्पॉट कौन सा था जहाँ पे ये अकेले में, इन सॉलिट्यूड मीन्स जहाँ एकांत में ये जाके प्रैक्टिस करते थे, वो था गंगा किनारे. जो रिवर गंगा है
बनारस में उसके किनारे वहाँ जाके प्रैक्टिस करते थे. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. और जो गंगा किनारे बैठकर जो जब गंगा को बहते हुए देखते थे तो वो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते थे और अपनी जो ट्यून्स होती हैं जो राग होते हैं उनको इम्प्रोवाइज़ करते थे, उनको बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे और नए नए राग भी इन्वेंट करते थे. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." अब जब वो 14 ईयर्स के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो वो अपने एक अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस गए. वहाँ पे जब उन्होंने शहनाई अपनी जो प्ले की तो उस्ताद फयाज़ खान ने उनको एडमायर किया और अप्रिशिएट किया उनके रिसाइटल को. एंड ही पैटेड हिज बैक एंड सेड, "इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल मेक इट, यू विल मेक इट बिग." Now, with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. नो ऑल इंडिया रेडियो पर जब वो स्टार्ट हुआ लखनऊ में 1938 तो बिस्मिल्लाह खान को एक बिग बिग ब्रेक मिला. बिग ब्रेक मीन्स ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ शहनाई प्लेयर इन द ऑल इंडिया रेडियो. He soon became an often heard Shehnai player on radio. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. It's a big thing that when India got independent, then the first thing they heard was Bismillah Khan's Shehnai recital. So that must have been a very prestigious moment for him. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. और उन्होंने जो राग कैफ़ी जो शहनाई पर प्ले किया था, it was magical and everybody was mesmerized listening to it. Even the our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, was also mesmerized. Now, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Now, जो पहला उनका जो बाहर जो कहते हैं विदेश यात्रा जो थी उनकी सबसे पहली वो अफ़गानिस्तान में हुई. वो सबसे पहले अफ़गानिस्तान गए थे और वहाँ के जो किंग ज़ाहिर शाह थे उन्होंने वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे, इतने ही वॉज totally taken in or he was charmed, okay, at his performance that he gifted him a lot of Persian carpets और बहुत सारी और भी चीज़ें उन्होंने दी थी. जैसे जिसको कहते हैं ना एक मेमोरी के तौर पे, एक यादगार के तौर पे चीज़ें गिफ्ट करना किसी को. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. अब जो ये किंग थे वो ही एक अकेले नहीं थे अफ़गानिस्तान के किंग जो कि फैसिनेटेड थे, बट फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने अपनी एक फ़िल्म का नाम भी रखा था गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस. दिल का खिलौना हाई टूट गया, ये एक बहुत फेमस सॉन्ग हुआ था उन दिनों का जिसमें बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनाई देती है. Now that turned out to be a nationwide chartbuster. Chartbuster means a very famous song which is heard by all the people across a country. Despite this huge success in the celluloid world, celluloid means जैसे आप कहते हैं ना फिल्म फ्रेटर्निटी या फिल्म वर्ल्ड जिसको कहते हैं, तो पहले ओल्डर टाइम में इसको सेल्यूलाइड बोलते थे. बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू टू. बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ 2 ही फिल्मों में म्यूज़िक प्ले किया है, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world.
और उनको फ़िल्म वर्ल्ड पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें बहुत ही सब कुछ आर्टिफिशियल लगता था और ज़्यादा चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया उन्हें पसंद नहीं आई. Awards and recognition came thick and fast. He got a lot of awards and recognition in abundance. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So he got all the recognition on the international front as well. He took Shehnai to on international platform. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. मतलब वो इंटरनेशनली इतने फेमस हो गए थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम के ऊपर रखा गया था, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan, and the Padma Vibhushan were conferred on him. He was awarded with all these national awards, which is a big thing for an Indian. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में इन्हें इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उससे नवाजा गया. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." और उन्होंने बहुत अपनी जो खुशी को ज़ाहिर करते हुए कहा था कि हमें अपने बच्चों को इंडियन म्यूज़िक, अपना जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो सिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक हेरिटेज है. इवन जो फॉरेनर्स हैं, जो अब्रॉड में लोग रहते हैं, वो भी इसे अप्रिशिएट करते हैं और यहाँ सीखने के लिए आते हैं इंडिया इस म्यूज़िक को. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, उनको प्यार से लोग खान साहब कहते थे, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. जबकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल किया, बट स्टिल उनको सबसे पसंद दो ही शहर थे, बनारस और दुमराव. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार एक उनके स्टूडेंट ने कहा कि मैं यूएसए में बिल्कुल सब कुछ जो आपका एटमॉस्फेयर बनारस में है वो रेप्लिकेट कर दूंगा, बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ पे सब कुछ मैं आपके लिए बनवा दूंगा, जितने टेम्पल्स हैं सब कुछ बनवा दूंगा, बट आप यूएसए शिफ्ट हो जाइए. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. तो खान साहब ने जवाब दिया कि क्या आप रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर पाओगे यहाँ से, बनारस से यूएसए में. Later, he is remembered to have said, "That is why, whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique mutt of Dumrao." वो रिवर गंगा को बहुत ज़्यादा मिस करते थे, बहुत पसंद करते थे और उससे अलग नहीं रह सकते थे. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him, a dedicated Muslim like him, can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे इंडिया के रिच कल्चरल, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसका. वो बहुत ही एक डिवोटेड, एक डेडिकेटेड मुस्लिम थे, लेकिन काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई प्ले करते थे. मतलब इफ़ यू कैन सी, religion is never a barrier in his life, in his professional life. He used to play in temples. वो एक मुस्लिम होने के बावजूद टेम्पल्स में भी प्ले करते थे और उन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली शहनाई को एक बहुत ही अलग, बहुत ही स्पेशल प्लेस हासिल करवा दी थी. Now, Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. और काफ़ी लंबी बीमारी के बाद 21st August 2006 में ही passed away. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. मतलब जब उनका देहांत हुआ तो पूरे इंडिया में उनके देहांत पर शोक व्यक्त किया गया और एक वन डे जो था पूरा वो नेशनल मॉर्निंग का
के लिए डिक्लेयर किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. Students, I hope that you have understood this chapter well. Now, here's your homework. You have to write the theme of this chapter along with the character sketch of Ustad Bismillah Khan and also the question answers. So, you have to submit your homework by tomorrow evening. Hope you've enjoyed watching this video. Thank you.